मिनिस्टर हैं इस वक्त बाज़ाब्ता गवर्नमेंट जेंट के यूटी में इस वक्त ये यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के मिनिस्टर हैं और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑनरेबल मिनिस्टर हैं। ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के। ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के। ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। एंड इन एडिशन ही इज द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ARI एंड ट्रेनिंग। तो मुझे तो ये कहने में कोई हमाकत महसूस नहीं हो रही है कि आधी गवर्नमेंट इस वक्त जनाब सतीश शर्मा जी के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे मेहमान आए हुए हैं और जो इन शख्सियात के इस्तकबाल के लिए यहाँ आए हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ आवर्द हुए हैं। तहसीलदार हंदवारा यहाँ तशरीफ आवर्द हुए हैं। यहाँ इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर RTO बारामूला कुपवारा मुदस्सिर साहब तशरीफ आवर हुए हैं। यहाँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब तशरीफ हुए हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्टर्स के मोहतरम शफकत इकबाल साहब तशरीफ हुए हैं। तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा मोहतरमा रुबीना जी से कि वो यहाँ स्कूल का तराना पहले पेश कराएं। बच्चों से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं तराने के लिए। बॉयज हायर सेकेंडरी शान है, मेरी जान है, पहचान है। दिस इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, दिस इज द एपिटोम ऑफ डिग्निटी। Respected all, we wholeheartedly welcome you here in this historical educational institute established in 1905 and got its higher secondary status in 1973.
شکریہ روبینہ جی. اس اسکول نے بہت سارے پروگرام تیار کر رکھے تھے اپنے مہمانان زیوکار کے لیے، لیکن وقت کی کمی ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا بلقیس جی سے کہ وہ ٹوکن آف لو جو ہے پرنسپل صاحب کے حوالے کر لیں، تاکہ پرنسپل صاحب مسٹر فیاض احمد لون صاحب بکنگ ایز ٹوکن آف لو اپنے دونوں جو مہمان زیوکار ہیں ان کو پیش کریں. محمد رمضان صاحب آپ ان کی مدد کر لیجیے. سبھی بچے زوردار تالیوں سے ان کا سواگت کریں. پلاسٹک پہلے لائے دوبارہ یوز ہو جاتا ہے. بڑھیا سے تھینک یو سر. اوکے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں دو شعر عرض کرنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ مہمان زیوکار جو بھی ہیں وہ اس کی طرف توجہ رکھیں گے. آج کا دن ہے خوشیوں کا پیام لیے ہوئے، آج کا دن ہے خوشیوں کا پیام لیے ہوئے، آپ کی آمد ہے رونق کو دوام لیے ہوئے. یہ چمن، یہ محفل، یہ مسکراتے ہوئے چہرے، سب ہے استقبال میں آنکھیں بچھاتے ہوئے. تو میں گزارش کروں گا سربراہ ادارہ محترم پرنسپل فیاض احمد لون صاحب سے کہ وہ باضابطہ طور پہ آفیشیل استقبالیہ کے لیے ڈائس پہ، منچ پہ تشریف لائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معزز مہمان خصوصی جناب چودھری محمد رمضان صاحب، ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا، محترم جناب ستیش شرما صاحب، عزت مآب وزیر محکمہ جات جموں و کشمیر UT، معزز ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر صاحب محترم اقبال صاحب، معزز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جناب جاوید نسیم مسعودی صاحب، محترم تحصیلدار صاحب اور دیگر سول و پولیس انتظامیہ، اساتذہ کرام، والدین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم و آداب. آج کا دن گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہندواڑہ کی تاریخ کا ایک یادگار اور قابل فخر دن ہے. اس تاریخی درسگاہ کے وسیع و عریض صحن میں ہم ایسی معزز شخصیات کا استقبال کر رہے ہیں جن کی زندگی عوامی خدمت، ترقی معاشرہ اور نوجوان نسل کی رہنمائی سے عبارت ہے. مجھے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ادارہ حاضہ کی جانب سے آپ تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید عرض کروں. آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار و اعزاز ہی نہیں بلکہ ہمارے طلباء کے لیے حوصلہ، امید اور عزم نو کا پیغام بھی ہے. یہ ادارہ جو 1905 عیسوی سے میں قائم ہوا، ایک صدی سے زائد عرصے سے علم کی روشنی پھیلا رہا ہے. اس درسگاہ نے ہزاروں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں جنہوں نے تعلیم، طب، انجینئرنگ، انتظامیہ، سیاست اور سماجی خدمات انجام دے کر اس ادارے اور ہمارے خطے کا نام روشن کیا ہے، جن میں خاص کر ہمارے درمیان موجود عزت مآب ممبر پارلیمنٹ جناب چودھری محمد رمضان صاحب بھی ہیں. محترم مہمانان گرامی، آپ کی موجودگی ہمارے طلباء کے لیے اس حقیقت کا زندہ ثبوت ہے کہ محنت، لگن اور عوامی خدمت کے ذریعے انسان معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ. میں اپنے ادارے کی طرف سے اپنے معزز مہمانوں کو
دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور استقبال پیش کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور سپاس پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت اور توفیق کی خدمت سے نوازے اور آپ کی کاوشوں اور کوششوں کو قوم و ملت کے لیے مزید بہتر اور مفید بنائے۔ آمین۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ محترم فیاض احمد لون صاحب، پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ۔ اہل علم کی بستی میں آج جشن سا ہے، ہر طرف خوشی کا ایک نیا منظر سا ہے۔ آپ کی آمد سے بڑا ہے وقار محفل، یوں لگتا ہے کہ چمن میں نیا گل ترسا ہے۔ جہاں ہم نے استقبال کیا بہت سارے مہمانان کا، وہاں ڈیموکریسی کا فورتھ پلر جو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پلر، وہ میڈیا سے وابستہ ہمارے جو نوجوان ہیں اور خصوصاً جو سینئر صحافی ہیں پاور ہوئے ہیں، تو میں ان کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس اسکول کے بارے میں، اس ادارے کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ اس ادارے نے جہاں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے اساتذہ پیدا کیے ہیں، وہاں بڑے بڑے دانشور اور جو سیاست دان ہیں، جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیدا کیا ہے۔ یہاں میں نام لینا چاہوں گا محترم محمد رمضان چودھری صاحب کا، جو اس وقت باضابطہ طور پہ ہمارے روبرو ہیں۔ تو کیا یہ ایک زندہ مثال نہیں ہے؟ دوسری مثال محترم عبدالغنی لون مرحوم، جو پیپلز کانفرنس کے تھے، انہوں نے بھی اس ادارے سے پڑھا ہے۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے سے پڑھ کر اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس ادارے میں اب بھی جو اساتذہ کام کر رہے ہیں، وہ اب بھی ایسے سپوت پیدا کر رہے ہیں۔ لاسٹ ایئر، پچھلے سال، ہمارے اس ادارے کے ایک ہونہار طالب علم نے ہندوستان میں جو 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے، اور وہاں جو پریڈ ہوتی ہے، این سی سی جو گروپ ہوتا ہے، این سی سی کیڈٹس کا گروپ جو ہوتا ہے، پورے ہندوستان کے این سی سی کیڈٹس کی رہنمائی اسی ادارے کے بچے نے کی ہے، اور ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی اس وقت کیا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمارے بچوں نے اس سال چندی گڑھ میں ایک بہت ہی بڑے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اسی طرح حال ہی میں ہمارا ایک بچہ جاپان کے لیے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک پروگرام میں سلیکٹ ہوا ہے۔ اور ہمارا یہ کاروان جو ہے، ہمارے پرنسپل کی سربراہی میں، اور ہمارے جو جان فشان اور ہمارے جو کارکردگی دکھانے والے اور ہمارے جو ڈیڈیکیٹڈ جو سٹاف ممبرز ہیں، وہ انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں یاد دلانا چاہوں گا یہاں 1986 میں جب آپ نے الیکشن لڑا تھا اور آپ اس میدان میں آئے تھے، تب میں 9th میں اسٹوڈنٹ تھا۔ میں اگرچہ اس ہائر سیکنڈری میں اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن میں اچانک اس جلسے میں یہاں شریک ہوا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے پیرزادہ محمد سید کا نام سنا تھا، وہ اس وقت شاید ایجوکیشن منسٹر تھے۔ آپ نے ان کو ساتھ لایا تھا اور پھر آپ نے یہاں تقریر کی تھی۔ میں اس وقت بہت خوش ہوا تھا جب میں نے آپ کی تقریر اور پیرزادہ محمد سید صاحب کی تقریر سنی تھی۔ لیکن میں یقین کہوں گا 39 سال کے بعد میں جب ایز لیکچرر اس ادارے میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس ادارے کی حیت نہیں بدلی ہے۔ میں تو یہ چاہتا کہ اس ادارے کو میں ایک یونیورسٹی کی شکل میں دیکھتا، لیکن اس ادارے کو وہ جو بلڈنگز ہیں وہ اسی شکل میں نہیں ہے۔ اب ایک چیز ضرور ہے کہ کمپوزٹ بلڈنگ آپ نے یہاں دی ہے، لیکن اس کمپوزٹ بلڈنگ کو روب عمل لانے کے لیے اور فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں سبھی اقدام اٹھائیں گے۔ تو یہاں اس ادارے میں کیا کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا کیا ضروریات ہیں جن کے بغیر تعلیم و تدرس کو قائم رکھنا ناممکن ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی ہونہار لیکچرر محترمہ عرفانہ مخدومی صاحبہ سے کہ وہ
चार्टर ऑफ डिमांड्स मुख्तसर तौर पे यहाँ पेश करे और साथ ही मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि चार्टर ऑफ डिमांड्स की फाइल जो है वो ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान साहब और जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जनाब सतीश शर्मा जी को हिदायत फरमाएं। In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, I tender my humble regards to our chief guest, senior Indian politician from JKMC and Honorable Member of Parliament, Shri Chaudhry Mohammad Ramzan sir, an alumnus of our prestigious institution, our chief guest, Honorable Shri Satish Sharma ji, Minister for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Transport, Information Technology, Youth Services and Sports, and Science and Technology Government of Jammu and Kashmir, Administrative Reforms, Inspections and Trainings, Union Territory of Jammu and Kashmir. Respected Sir, Chaudhry Ramzan sir, it's a matter of immense pleasure, pride, joy for our institution to welcome you to your alma mater. Sir, as a distinguished alumnus and a proud neighbor of this institution, your visit holds special significance for our students, staff and the whole community. Your lifelong association with the school is a source of inspiration and pride for all of us. Your remarkable journey from a student of this institution to a member of parliament serves as a shining example for our students. On this memorable occasion, sir, I believe as a lecturer here, as a teacher, that we have students who have immense talent among them, but our school has certain lacunae. As it is said, education flourishes where vision meets sport. With a hope, with a confidence, we humbly seek your kind attention towards certain developmental issues that's going to help our students today and our future generations. Sir, we require an installation of 13 smart boards in classrooms to promote modern and technology-enabled teaching and learning. Respected sir, construction of separate lavatory blocks for girls and boys to ensure proper sanitation, hygiene, and students' welfare. Respected sir, we require construction of a gatekeeper's room, security cabin at the school entrance to facilitate effective security management, visitor regulation, and safeguarding of school property and students. Respected sir, we require filling of all vacant school teaching posts in this institution to ensure smooth academic functioning, quality education, and efficient administration. 14 lecturer posts and 1 master post. Sir, establishment of a well-equipped school library is very important with adequate books, reading material, furniture, digital resources to promote reading habits and academic excellence among students. So, enhancement of funds for proper utilization of composite building and a proper auditorium. Thank you. Now, our next chief guest, Satish Sharma ji. Sir, it's an honor
it's an honor that you are here. Despite the busy schedule, you took the time and visited our institution. You are a role model for our students. Sir, it's, as I already mentioned, it's an honor and privilege to welcome you here. On this occasion, we humbly submit the following requests for, boosting or strengthening sports infrastructure in our institution, because, sports make our students confident, healthy, strong. Number 1, construction of an indoor sports hall for all weather sports activities. Establishment of a modern gymnasium fitness center for students. Number 3, development of a badminton court with synthetic flooring. Development of a tennis court with standard sports infrastructure. 13 smart classrooms, modern computer labs, modern science lab, modern school bus for remote areas. Auditorium, Youth Skill Development and Career Guidance Center. We request your kind consideration and positive intervention in this regard. Thank you so much, sir. Thank you, Irfana Makhdoumi Sahiba. We are hopeful that our chief guests of the occasion, they will inshallah go through this document, and we hope that our needs and our demands will be fulfilled. आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारा इदारा नीट एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मुनहमिक और बहुत ही परेशान ही था, लेकिन जो ही हमने सुना कि हमारे ये अजीज और जीवकार मेहमान यहाँ तशरीफ आवर हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि ये गनीमत है हमारे लिए, इंशाल्लाह हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आप और सामईन के दरमियान की दूरी को हटा दूं और खुद दरमियान में न रहूं, इनको दावत दूं डाइस पे, मैं गुजारिश करूंगा यहाँ मिस्टर उबैद मुजीद साहब है जो फुटबॉल एसोसिएशन से के मेंबर हैं, वो मुख्तसर तौर पे, क्योंकि मौसम इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा है ज्यादा देर करने की, मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अल्फाज में वो अपनी डिमांड्स रखें। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Honorable Sports Minister Sir and Chaudhry Mohammad Ramzan Sahab, Member of Parliament and King of Development, जिन्होंने हंदवारा में बहुत सारे काम किए अभी तक, हम उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। जो खुद एक खिलाड़ी रहे हंदवारा में, जिन्होंने खुद हंदवारा स्पोर्ट्स के कप्तान रहे हंदवारा में, हम उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। हम बस हमारी छोटी सी गुजारिश है सर से कि हंदवारा में ग्राउंड की बहुत ज्यादा कमी है सर। यहाँ पे लड़के फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है हमारे पास सर। हमारे पास खेलने के लिए लाइक के हंदवारा में इसको स्पोर्ट्स हब कहा जाता था सर, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास ग्राउंड नहीं है। हमारी गुजारिश है सर कि यहाँ पे एक तो फ्लड लाइट्स का इंतजाम किया जाए सर, और हमारे लिए यहाँ पे बच्चों के लिए एक डग आउट सर, चेंजिंग रूम सर, उनका इंतजाम किया जाए सर। सर एक तो यहाँ पे फ्लड लाइट्स का सर, और उसके साथ साथ सर चेंजिंग रूम सर, ड्रेसिंग रूम सर, चेंजिंग रूम यहाँ पे होना चाहिए सर। बाकी जो यहाँ पे मतलब सपोर्ट्स यहाँ पे सर लेक का फैसिलिटीज, उसकी वजह से सर यहाँ पे लड़के बहुत ज्यादा लड़के होते थे ग्राउंड में, लेकिन बदकिस्मती से आज ग्राउंड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर। 4 बजे तक ग्राउंड बंद रहता है यहाँ पे सर। 4 बजे के बाद 4 बजे तक स्कूल होता है यहाँ पे, 4 बजे के बाद बच्चे आते हैं, लेकिन सर ग्राउंड में लेवलिंग नहीं है, बाकी चीजें नहीं है सर। बस यही गुजारिश है हमारी सर आपसे। थैंक यू। थैंक यू उबैद मुजीद साहब। इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अदबन जनाब सतीश शर्मा सर से कि वो मंच पे तशरीफ आके अपने ज़रीन ख्यालात से नाजरीन और सामीन को नवाजे। ये शेर उनकी नजर में करना चाहूंगा। ये बज़म आज आपकी आमद से मोतबर ठहरी, ये बज़म आज आपकी आमद से मोतबर ठहरी, हर एक निगाह में खुशियों की एक नजर ठहरी। कबूल कीजिए ये जज्बे मोहब्बत भी,
कबूल कीजिए ये जज्बे मोहब्बत भी कि आपकी जात हमारे लिए बाइस फख्र ठहरी। मोहतरम सतीश शर्मा। इतनी शानदार उर्दू और इतनी बेहतरीन अंग्रेजी के बाद क्या ही रह जाता है। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट चौधरी रमजान साहब, बदकिस्मती है मुझे उर्दू नहीं आती है, लेकिन शायरी बहुत पसंद है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। किसी ने बड़ा अच्छा बोला, अगर कोई गलती हो जानी तो मुझे माफ़ करना, मैं उर्दू पढ़ा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े थे। वो कहते जो हम पे गुजरे हैं रंज सारे, जब उन पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, जब अगले मौसम उन्हीं दरख्तों पे फल ना उतरे तो लोग समझे। फिर आगे क्या था, वही कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई ना समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। फिर कहते वो गांव का एक ज़हीफ दहका सड़क के बनने से क्यों खफा था, गांव का एक ज़हीफ देखा सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। तो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए, सबसे बड़ी लड़ाई रियासत की लड़ाई है। इस हुकूमत को बदकिस्मती से विरासत में रियासत नहीं मिली जो हमसे छीन ली गई। वी वर अ कंट्री, देन वी वर अ स्टेट, नाउ वी आर यूटी। हमारी मुश्किलात जो हैं वो आई होप ओपोजिशन वाले समझ सकते हैं। पहला दिन जो होगा मानसून सेशन का, रमजान साहब हमें लेकर जा रहे हैं, अब पता नहीं हम पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, बट हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी रियासत हमें मिलनी चाहिए। मेरे पिताजी के दोस्त, और 87 में जब 29 साल बाद आप कौन थे लेक्चर साहब, कहाँ गए वो जो कह रहे थे, आप ही थे शायद, जो 29 साल बाद यहाँ पर लेक्चर बन गए हैं जब रमजान 39, वो फिर 86 नहीं थे, वो 87 में थे, चुनाव लड़े थे। तब मेरे पिताजी स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे रमजान साहब के साथ, तो आज मैं बन गया हूँ। वो हॉकी खेलते थे रमजान साहब, क्रिकेट, और मैं कुछ नहीं खेलता। तो बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन आई एश्योर यू मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने की कोशिश करूंगा। जब से बना हूँ मैं लकी आदमी हूँ। सबसे पहले रांझी आगे, जोरदार तालियां रांझी की टीम के लिए। पहली बार हमने वाटर स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस करा और वो सक्सेसफुल रहा। पहली बार गुलमर्ग में हमने डाउन हिल माउंटेन बाइकिंग शुरू करी। विंटर स्पोर्ट्स के 2 अच्छे एडिशन हुए। अगले साल हम कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, बारामूला में तो है ही है, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में हमने स्कीइंग शुरू करी, अनंतनाग में, और यहाँ पर भी अगर स्लोप्स आपके पास अच्छे होंगे तो हम शुरू करेंगे। SO12 उमर अब्दुल्ला सरकार ने लगभग 12-14 सालों के बाद उनकी नौकरियां पिछले दिनों हमने 230 के करीब हमने दी हैं, और कुछ लोग और भी लगाएंगे। रैबरे खेल का इशू था, वो हम थोड़े दिनों में करने जा रहे हैं, परमानेंट सारे इन्वाल्व को। NYCs की इनहेंसमेंट डबल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी बेहतर करेंगे। संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हमारी टीम पहुंची। AI कॉन्फ्रेंस कल मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो इस सरकार ने पिछले 18 महीनों में किया है, परेशानी बहुत है, तो हमने और आपने मिलकर उसका निवारण करना है। चौधरी रमजान जैसी शख्सियत, ये बहुत बड़ा एक, इट्स एन ऑनर टू विजिट स्कूल एज ए चीफ गेस्ट जहां आप पढ़े हो। मैं भी सर 26 साल के बाद स्कूल की क्लास के बाहर, प्रिंसिपल के रूम के बाहर बैठा रहता था, तो वहां चीफ गेस्ट बन के गया। आई वॉज बैक बेंचर एक्चुअली। तो परवाह मत करना बच्चे जो बैठे हैं, जिंदगी में परेशानियां होंगी, और समाज की परवाह उसी दिन करना जिस दिन पड़ोसी आपको जेब खर्च देंगे या राशन डालेंगे आपके घर में, ठीक है ना। डोंट गेट प्रोवोक्ड, डोंट डिले हैप्पीनेस, एंड लव योर पेरेंट्स, ठीक है। अब 12वीं के बाद लाइफ इज नॉट फेयर, जो आप सोच के निकलोगे ऐसा होता नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ, 25 साल एक संगठन के साथ नारे लगाता रहा। लास्ट में इज्जत उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे दी, चौधरी रमजान साहब ने दी, तो आज यहाँ खड़ा। मुझे एक मेमोरेंडम आपकी तरफ से जो दिया गया है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडोर स्पोर्ट्स हॉल। आपसे पहले मुझे ये बातें, ये सारी चीज़ें चौधरी साहब ने दी है। मेरी सेहत थोड़ी नासाजगार है,
बुखार है, जुकाम है, लेकिन ये जो अब हम खेलो इंडिया सेंटर्स का कोशिश करेंगे एक आपको दे दें, जिसके तहत आपकी सारी समस्याएं खासकर हंदवाड़ा की रह जाएंगी, जिसमें जिम्नेजियम भी होगा, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट्स 2-3 होते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट होता है, टेनिस कोर्ट होता है। तो अगर वो खेलो इंडिया और खेल गांव में आ जाए तो आपकी तमाम मुश्किलात अगले 4-6 महीने में हम आपको वो भी देंगे। उसके बाद स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी की बात है तो चोर साहब और मैं अपनी ऑनरेबल एजुकेशन डायनेमिक मिनिस्टर है सकीना इत्तू जी, हमारी बड़ी बहन, उनसे हम ये करवाएंगे। बसेस की जहां तक ताल्लुक है, मुझे लगता है लेडीज को जोरदार तालियां करनी चाहिए जो बस में, फ्री बस में कोई बैठा आपने से? नहीं, ये सब कार वाले, आपने क्यों बैठना है जी? बैठना भी नहीं, वो आपके लिए नहीं, वो गरीब लोगों के लिए है। तो 10 नई गाड़ियां हम देने जा रहे हैं, नई आपको बसेस हम अगले थोड़े दिनों में। वो और जो 9 से लेकर BA तक के बच्चे हमारे हैं, उमर साहब की आशीर्वाद से हमने उनका भी कराया, जो BPL में फॉल करते हैं हम फ्री कर दिया है, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनका भी फ्री किया है। 2 IT पार्क्स हम बनाने जा रहे हैं, जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको IT में कुछ करना है, चाहे साइबर सिक्योरिटी में कुछ करो, AI में करो, क्लाउड में करो। IT पार्क में मैं चाहता हूँ, ये मैं भी ऐसा ही था यार, डोंट वरी, तो ये बच्चे तरक्की करते हैं जो पीछे करते हैं, तो उसमें कुछ करो। मैं चाहता हूँ कि मेजॉरिटी बच्चे हमारी लगे, एक जम्मू में एक यहाँ पर। फिर झेलम में हम 65 किलोमीटर में रिवर क्रूज टूरिज्म लाने जा रहे हैं, उसमें भी रोजगार पैदा होगा, टूरिज्म की बढ़ोतरी होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन उसके लिए मुझे आप स्टाफ का और लोगों का, सबसे बड़ी वबा जो नशा है, क्योंकि मैं आपकी तरह बॉर्डर से आता हूँ, LOC पे मेरा जन्म हुआ, 500 मीटर की दूरी पर मैं पड़ोसी मुल्क से रहता हूँ। ये तो हंदवाड़ा फिर शहर है उस लिहाज से, तो इसलिए उससे लड़ाई करनी है। उसका सिर्फ रैलियों से उसका कुछ नहीं होगा। जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो सियासतदान कोई क्यों ना हो, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, आपने वो लड़ाई लड़नी है। अपने बच्चे जो नशे में चलेंगे उनको वापस लाना है, क्योंकि वो हमारा सरमाया है। ऊपर वाले का शुक्र है कि टूरिज्म वापस आया। 12 महीने पहले पता नहीं यहाँ ड्रोन्स यहाँ तक अभी आए नहीं आए, आपने मिस कर दिया, हमने वो भी देख लिया। और सुनाओ, जम्मू श्रीनगर शहर तक हुआ है, तो इसलिए डर हमारा खत्म हुआ। टूरिज्म इज बैक ऑन द ट्रैक एंड आई एश्योर यू, उमरदुल्ला साहब से उनके मुकाबले का नेता अगले 20 साल आपको बड़े सगीर में नहीं मिलेगा। इज अ विजनरी सेकुलर, मेरे जैसे आदमी जो इंडिपेंडेंट जीता मुझे मंत्री बना दिया, वो बड़ी मेरे से बेहतर लोग बैठे हुए। इसलिए NYC, रहबरे, खेल, SO12, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद आपको मुबारक है, इसके लिए जोरदार तालियां जो NCC में हमें हमारे जम्मू कश्मीर को, और मेरी तरफ से इसको, अभी तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं, मैं फिलहाल 10,000 रुपये का इसको इनाम दूंगा, इसके काम आएगा। और बहुत सारे इश्यूज है, मेरी पार्टी के लोग हैं, कुछ सोलराइजेशन हम आपकी बिल्डिंग की करके दे देंगे, जो सब जैसा आपने हुक्म किया मुझे। ये सारी बिल्डिंग मुझे लगता है सोलराइज नहीं हुई है। हम तमाम सरकारी बिल्डिंग्स को सोलराइज कर रहे हैं, तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमाम बाड़ा, हर जगह लाइट्स दे रहे हैं। 4 हाई मास्क लाइट्स फिलहाल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो रास्ते में आ रही है। कल से यहाँ पर कॉर्नर्स में वो 6 लाख के करीब बनती है, वो मैं आपको दे दूंगा। और उसके बाद कोई सामान कुछ हम स्पोर्ट्स का लाए हैं, वो वितरित कर देंगे। ये कुपवाड़ा एक शानदार शहर है, जहाँ पर चौधरी रमजान साहब जैसे लोग, लोन साहब जैसे लोग, शाह फैसल जैसे लोग, अनवर शाह कश्मीरी जैसे स्कॉलर्स, अली मोहम्मद शाबान जैसे पोएट, रुएदा सलाम जैसे ऑफिसर्स रहे हैं। तो जोरदार तालियां इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो एक तो सोलराइजेशन होगी, बाकी जो डिमांड आपकी ये आई है, पेविलियन की डिमांड आपने, हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर करेंगे। बस यहाँ कोई बिल्डिंग का वो ना हो, इसको और भी बेटर करेंगे जो आपकी डिमांड होगी, ठीक है। और मैं जो आरी में हमारी बजट मीटिंग होगी, उसमें इसके कुछ पैसे जरूर रखूँगा। और उसके अलावा क्या बताऊँ आपको, लिखा हुआ है, बस हो गया, इतना ही है। दोबारा बुलाना, हाँ चाय नहीं पिलाई इन्होंने सर हमें, वो भी पिला देंगे। ये मेरे पिता समान है, तो यही मिनिस्टर है। हमें बनाने वाले ये लोग हैं, तो आपको मानने की जरूरत नहीं है, देने वाले ये लोग आपके सामने बैठे हैं। और दलेरी से हर चीज का मुकाबला करना। और अपोजिशन वालों को भी मैं बोलूंगा कि एकजुट हो जाओ। 7 महीने के लिए रिजेक्ट किया गया है कुछ लोगों को, ये 7 महीने उमरदुल्ला साहब को दें, जो लड़ रहे हैं आपकी स्टेटहुड के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारी इस साल में अच्छी तरक्की होगी। और नौजवान बच्चों को नशे के खिलाफ लड़ना, हार नहीं मानना। और किसी ने बोला है ना शेर, अब मेरा मन कर रहा है क्योंकि उर्दू में सीख रहा हूँ, कि सफेद पोशी तेरा एतबार जाता है।
अगर चिराग हवाओं से हार जाता है। आगे बढ़ने में खतरा है मौत का, लेकिन मैं पीछे हटता हूं तो सारा वक्त हार जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सतीश शर्मा जी का बहुत ही शुक्रिया। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां आपको लगा कि एक सादा शख्स आपके सामने बात कर रहा था, वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि पहले LLB डोगरा लॉ कॉलेज से किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से किया है। और आपके लिए मैं जानकारी देना चाहूंगा